शांति नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका एक मुलाकात में। एक मुलाकात में हर बार हम आपको मिलाते हैं किसी खास व्यक्तित्व से, और आज जो महान व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, आप न्याय से जुड़े हैं। और न्याय के लिए कहते हैं, न्याय के लिए खड़ा होना और न्याय करना, इसके लिए विद्वता और शक्ति की जरूरत होती है। और आज हमारे साथ ऐसे ही विद्वान और शक्तिशाली प्रतिभा के धनी हमारे बीच में हैं उड़ीसा कटक के फॉर्मर जज बिमल प्रसाद दास जी। आइए उनसे मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके जीवन से उनके अनुभवों को पाते हैं। स्वागत है जज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आप पधारे। इस प्रांगण में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? I came here for the first time, and for the first time, the feeling which I got and which I am returning with the feeling, that is sense of well-beingness, sense of fulfilledness, and a sense of spiritual emptiness which has gone out of me. जी, I have gathered spirituality, and not in total in 1 or 2 days I cannot, but my feeling is that if you go on this path of spiritualism, you will find peace, love, tranquility, and hope for the future. बिल्कुल ये ऐसा पथ है जो स्पिरिचुअल पथ है, हमारे इस सत्य, शांति और खुशी के जो स्वरूप से जोड़ देता है। और वो खुशी हमें महसूस होती है, जो हमारे अंदर विद्यमान है वो हम महसूस करते हैं, वो हमसे बहती है और दुनिया में भी वो फैलती है हमसे। आप न्याय से जुड़े रहे हैं और बहुत बड़ा जीवन का अनुभव है आपका, जीवन के हर क्षेत्र का अनुभव है आपको। आप एक बेहतर मानव को किस नज़र से देखते हैं? कैसा होगा एक बेहतर मानव? There is compassionate, प्यार से, compassion, प्रेम से भरा होगा। प्रेम से भरा होगा, और to be a judge, a compassion is utmost necessity. जी, Because of the reason, compassion is not sympathy. Compassion is you have to put yourself in the position of a person who is in trouble, जी, who is suffering, and realize and wipe out his suffering, try to wipe out his suffering. That is compassion. Sympathy is very not true, also very true। sympathy is also not compassion. जी, Sympathy is there is somebody is suffering, I sympathize for him, I share his feeling, but that is not compassion. Compassion is you have to be put yourself in his position and realize what difficulty he is facing and what is the actual solution for the problem. जी, That बिल्कुल is the सही। best quality of a human being, and that is the quality which is necessary for becoming an judge or advocate or anybody, if he is a judicial officer or in an administrative officer. जी, प्यार का, कंपैशन का ऐसे किसी भी प्रोफेशन में हो, नॉट ओनली ज्यूरी में है अगर व्यक्ति, वैसे भी कहा जाता है दुनिया में प्यार में सारे समाधान छुपे हैं, क्योंकि प्यार व्यक्ति की क्षमता को भी बढ़ा देता है और सामने वाली की मुश्किल को कम करने का एक जज्बा भी आ जाता है, एक धीरज भी, पेशेंस भी लेके आता है। जो पेरेंट्स होते हैं उनमें देखिए कितना कंपैशन होता है, और वो बच्चे के लिए क्या-क्या गुज़र कर जाते हैं और उसको नरिश करते हैं, उसको खड़ा करते हैं। तो सचमुच जो आपने आपका अनुभव है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो कंपैशन है वो एक बेहतर मानव की पहचान है, वो उसका सबसे ऊँची वैल्यू है। और प्यार के साथ सब कुछ पीछे-पीछे चला आता है। आप न्याय से जुड़े रहे हैं। आप भारत के नागरिकों को न्याय के बारे में क्या विशेष बात बताना चाहेंगे? Thank for the citizens of India that they have got the faith on the judiciary. जी, Still, we are delayed, and sometimes the matters are delayed, but why they are coming to judiciary? Because they found that they have not got their right in the executive. Because the executive fails, they come to judiciary. Otherwise, if a collector will solve his problem, they will never come to High Court in a writ application to give a direction to the collector. जी, So, every wing of the state, if joins together and geared up to work for the public,
then cases will be less and judiciary will be more purified and the judges will be able to pass better judgments with small number of cases. Application mind will be much better. जी, इसमें आपको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी क्या मदद कर सकती है? Spirituality is patience, hearing, giving an opportunity of hearing, not to get irritated. Where from that's coming? That is coming from your inner side, जी, from your heart, not from your mind. Patience comes from your heart. If you are impatient, you do not hear. बिल्कुल, बिल्कुल. Then what type of justice you will give to the people? और जस्टिस के लिए हियरिंग बहुत जरूरी है. Yes. जी. So the people, those are coming to judiciary, they're coming with a much hope. If we throw away their files without hearing them, then we are doing injustice. We are not the persons to deal with this type of the post we are. बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये औहदा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है. और वैसे भी न्यायाधीश तो सबसे बड़ा ईश्वर को कहा जाता है. उस कुर्सी पे बैठ के न्याय देना वो कितना बेहतर होना चाहिए. और हियरिंग, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो इस तरह से आपने मदद करती है, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर. बल्कि आप देखिए, स्पिरिचुअलिटी जितना बढ़ती जाए, अगर ज्यूरी में भी बढ़ती है, नागरिकों में बढ़ती है, केस भी उतने कम होंगे. क्राइम व्यक्ति एक गलत मनोवस्था में करता है, वो गुस्से में करता है, लालच में करता है, या किसी और विकार के वश होकर करता है. यदि हो तो स्पिरिचुअलिटी हर तरह से समाज को बेहतर बना सकती है. When a child is born, जी, he is as pure as sunshine. He doesn't have feeling of hate, love. He takes food from her mother and grows up. Why he becomes a criminal? सोचने वाली बात है. That is social impact. Why there is a social impact? Because you have not gone, that spiritualism has not entered into them, where temple is always flooded with devotees. जी, But crime is also going high. Rate of crime is also going high. Why that is happening? Because मन में जो लालच है, हम अभी तक छोड़ा नहीं. हम भगवान को देते हैं, भगवान के पास जाते हैं मंदिर को, कहते हैं हमको और दो, और लालच लेके जाते हैं. वो हो जाएगा तो हम आपको पूजा चढ़ाएंगे, और लालच लेके जाएंगे. If we go to God with the feeling that let the world, there is a peace there should be peace in the world. Let me live with my neighbor with all happiness and friendliness. Then there will be no question of fighting with a neighbor or fighting with anybody else. जी. Another thing is, everybody, even if he is a criminal, he has a conscience. God has given conscience to everybody. जी. So spiritualism is such a thing that it has within everybody. When a man kills another man, the killer, the conscience must be telling him that it is a wrong thing. At the same time, the devil is there. Devil is justifying what you have done is correct. He is swayed away by the devil, not bound by his conscience. So at this stage only, there is necessity of spiritualism, and how they will get the spiritualism? It is the work of those who are spreading spiritualism, those who are teaching spiritualism. जी, सचमुच ऐसे लोग भी रोशनी के समान है जो इस तरह से अच्छा जीना सिखाते हैं. मुझे वो कहानी याद आती है. एक बार एक पोते ने दादा से पूछा कि बुराई और अच्छाई में कौन जीतेगा. तो उसने कहा जिसको तुम फीड करोगे वो जीतेगा. तो चुनाव सही करना, सही विचार को चुनना, उसी को शक्ति देना, ये बच्चों को आज सिखाना बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इससे बेहतर कोई माध्यम नहीं है. और अच्छा परिवार का संग मिले, अच्छा समाज का संग मिले, ऐसे टीचर्स मिले, तो बहुत बेहतर हमारे भारत के, विश्व के नागरिक होंगे. और ये धरती जो इतनी सुंदर है, स्वर्ग बनेगी. और इसी परिकल्पना को लेकर हम यहाँ कार्य भी कर रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं. Spiritualism should be introduced in the school level also. Very true. जी. That should be introduced. हाँ जी. So that small children can learn what the spiritualism is along with their curriculum.
The spiritualism should be one of the subjects. मुझे लगता है जल्दी ये अच्छा काम हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। बहुत जिस तरह से इसकी ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि हम हर चीज़ से गुजर कर देख चुके हैं और इसे अभी ट्राई करना बाकी है। और जिन्होंने इसे टेस्ट किया है, अनुभव किया है, वो जानते हैं कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी को कैसे तब्दील करती है। जैसा वैसे दुनिया में कहा जाता है कि हर कोई जो है ना, जब अपनी बात आती है तो वकील बन जाता है और दूसरे के लिए जज बन जाता है जब उसको देखता है तो क्या लगता है आपको, कैसे होना चाहिए? अपने के लिए तो वकील सब बन जाते हैं जी, मगर अपने के लिए जज बनना तो बहुत बहुत ऐसा आसानी बात नहीं है। बिल्कुल जज योरसेल्फ is also very difficult. बिल्कुल If we feel that what is wrong and right with an open mind, then we can see through the darkness of untruthness. We'll find the light of truth. जी, So, if you say that what I say is correct, then you are not a judge. You are not. You cannot. You are a judge for yourself. You are judging yourself. But if you keep your mind open and listen to everybody, and out of their feelings, you can create a synthesis of their feelings and come out with a synthesis, then you will find out what the truth is. बिल्कुल। आपके जीवन के अनुभव से हम जानना चाहेंगे, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति जिसमें सचमुच आपने कॉन्शियस की बात की, विवेकशीलता की बात की और आपकी विवेकशीलता से उस निर्णय तक आप पहुंचे जो कि बहुत बेहतर था। Many cases I have done during the period of my 12 years as a judge, जी, 13 years as a judge. But one case I will never forget, that a small column of newspaper Times of India, Indian Express, जी, a very short news came that a woman from, old lady, from a remote district of Orissa, not getting her family pension since last 20 years of her husband's death. So I took it as a writ petition, initiate a proceeding, जी, and send notice to the government. They came, the inspector of schools came, the director of mass education, he also appeared. They said that the service book of that person is not available. I told them, if the service book is not available, that is not her fault. बिल्कुल, She is at the fag end of her career, fag end of her life. She is not getting the pension. But what about you admit what he is entitled to get? I will tell to 1 week after. No, you tell me within 3 days. जी, They said that he has to get some lakhs. I told them, please give that first within 7 days. वंडरफुल, 7 days. And give the check in her house, hand over to her, and file an affidavit before me. It was done. And the entire amount, subsequently, she also got the entire amount within a period of 1 month. वंडरफुल। और ये आपके जो ऐसे आपने कंपैशनेट होने की बात की, स्नेह भाव की बात की, उसका लाइव एग्जाम्पल है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरह से आपके मन में यदि प्रेम भाव हो तो कैसे सबके भले की भावना, सबको मदद करने की भावना जाग उठती है। और कितना सुंदर हो गया आप, उसने उनको दुखों से मुक्त किया, इतने बरसों का जो उसके अंदर दर्द था, तो दुआएं कितनी मिली होंगी आपको, मैं समझ सकता हूँ। वो तो भगवान को इच्छा है, वो तो बहुत अच्छा। और आपसे हम चाहेंगे आप जल्दी जल्दी यहाँ आते रहें, ये घर आपके लिए है, इस घर में आकर I love this place. जी, I was thrilled to come here. I love the atmosphere, the people, and the spiritual teaching they are giving. And for 3 days I was here. I have forgot about my family. एक नया परिवार मिल गया, नया यहाँ आके परिवार नया मिला। परिवार मिला। भ्राता विमल प्रसाद दास जी, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप हमारे
पास यहाँ है, यहाँ आके आपने बहुत कुछ नया जाना, यहाँ के अनुभवी वातावरण से, पावन वातावरण से बहुत पाया, ये आपने बताया। इस उम्र में, जिस उम्र के दौर में आप हैं, जितना अनुभव आपके पास है, जितना ज्ञान आपके पास है, जितना कंपैशन आपके पास है, अब आप इस दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं? I can only spread this message to my friends, relatives, and those in meetings where I am attending. I can spread this feeling of mine, what I have got and जी, what I have lost there and what I have got here. I can share it with my friends and relatives. जी। और किस तरह से इस दुनिया को आप मदद करना चाहेंगे? आपको भगवान शक्ति दे दे कि आज मैंने आपको ये ताकत दे दी, लो ये जादू की छड़ी है, घुमाओगे तो जो चाहे सो हो जाएगा, तो आप क्या करना चाहेंगे? My first duty would be, let this world be free from drugs, free from hooliganism, जी, and free from hate and crime. वंडरफुल। और उसकी जगह ये दुनिया प्यार से, शांति से, भाईचारे से, संपन्नता से, सुख से भर जाए। ये मैं भी आपके साथ चाहूँगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे अनुभवी विद्वान हमारे साथ आते हैं और प्रैक्टिकली जीवन के वो हर दौर को जानते हैं। हर व्यक्ति जो उनके सामने आता है, वो किसी न किसी दर्द को लेकर आता है या किसी न किसी क्राइम से जुड़ा हुआ होता है, और एक व्यक्तित्व को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और ऐसे महामानव जब अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देकर और इससे रोशनी फैलाते हैं, तो सचमुच ये जग जो है और रोशन हो जाता है। और वह वो दिन दूर नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे प्यारे भगवान के बच्चे जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने समाज की सेवा की है, अध्यात्म से जुड़कर और शक्ति लेकर इतना ऊँचा जो लक्ष्य रखते हैं कि अब हमें और अच्छा कार्य करना है, तो वाक़ई ये दुनिया बहुत बेहतर स्थान होगी। आपके पधारने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो भाई-बहनों, आपने जाना उड़ीसा के फॉर्मर जज भ्राता बिमल प्रसाद दास जी। कितने प्यारे अनुभव हैं उनके इस धरती पर आके, और ये धरती सबको आकर्षित करती है। और यदि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में नहीं पधारे हैं, तो कोई कारण बना के किसी कार्यक्रम में किसी शाखा से संपर्क कर कर यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ की आध्यात्मिक जो बेशुमार यहाँ का खजाना है, संपत्ति है, वो आपका इंतज़ार कर रही है। और सचमुच जो जीवन में खुशियाँ, आनंद, प्रेम आप जो चाहते हैं, वो उसके लिए नए द्वार खुल जाएँगे। और जैसा आज हमको बताया कि अपना जज बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपना जज बनिए। रोज शाम रात को आप बैठिए और देखिए अपने कर्मों को सच्चा जज बन के, कि इसमें क्या एक परिवर्तन की जरूरत है, कहाँ मैं और बेहतर हो सकता हूँ। अपना जज बनेंगे, आपका जीवन और बेहतर होगा। और अगर आप कंपैशनेट बनेंगे, तो जिंदगी पर होगा सोने से सुहागा, और जिंदगी और ये दुनिया होगी बहुत खूबसूरत। तो आइए चलते हैं ऐसी जिंदगी और ऐसी दुनिया की ओर एक मुलाकात के साथ। ओम शांति, नमस्कार।